Hare Krishna students, how are you all? Doing good? Okay, so stay safe. First of all, आप सब ध्यान रखिए अपना. There is that disease dengue spreading widely, so please take care of yourself. And the symptoms are cold and cough. So stay away from anyone who is having cold and cough, and you wear mask and maintain social distancing when you are out. Okay, take care of your health, everyone. Good. Okay, we will start with our subject, Essential English. Do you remember where we stopped? Chapter number 9, The Hare on the Moon. We have to continue reading our chapter. Okay, please open to page number 48. Page number 48, the top paragraph, we have to start from here. Okay, so everyone take your pen or a pencil और आप सब मेरे साथ read करिए. Okay, this will improve your pronunciation. Everyone, let's start. The monkey thought, I can easily climb trees. I know of a tree that is laden with plump, juicy mangoes. And in no time he ran to the tree, climbed it, and plucked the sweet, fragrant mangoes. Meanwhile, the otter quickly made his way to the Ganga river and dived in. He went deep into the river and collected several fish. The jackal did not know what to do. He searched around trying to arrange for his contribution. Trying to arrange, इधर D नहीं आएगा. Okay, please cross this D. Trying to arrange for his contribution. D क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर इधर D आएगा तो ये sentence change हो जाएगा past tense में. Okay, and in the beginning of the sentence we have trying, search, already a past tense. So to make the form correct, we will remove D. He saw a little hut at the edge of the jungle with its door ajar. Okay, we will understand क्या होता है फिर बाद में. जो मंकी रहता है उनके ग्रुप में कौन कौन रहता है? There are 4 friends. कौन कौन? Rabbit, otter, jackal and a monkey. Okay, so जो monkey रहता है वो क्या सोचता है? Thought मतलब सोचना कि मैं आराम से पेड़ पर चढ़ सकता हूँ. मुझे एक ऐसा पेड़ पता है जिस पर प्लम्प मतलब एकदम अच्छे से राइप्ड मैंगोज और राउंड एंड जूसी, एकदम फ्रेश मैंगोज. मुझे एक मैंगो ट्री पता है और मैं उधर जल्दी से भागकर जाता हूँ. मैं उधर चढ़ता हूँ और वो जो स्वीट मैंगोज़ हैं आई विल प्लग देम. उनमें से बहुत प्यारी मैंगो की फ्रेगनेंट मीन्स खुशबू आती है. मीनवाइल मतलब जब तक मंकी ये सोच रहा था तो जो ऑटर क्या सोच रहा था? उसने क्या करा? वो जल्दी से गया कहाँ पर? गंगा रिवर. कहाँ पर? कौन सी सिटी है ये? वाराणसी. डू यू ऑल रिमेंबर? वाराणसी में वो जल्दी से गया गंगा रिवर और उसने डाइव इन मतलब डुबकी लगाई. उसे हम क्या बोलते हैं? डाइव. और वो नदी के गंगा रिवर के बहुत डीप तक, बहुत नीचे तक चले गया और उसने बहुत सारी फिश को इकट्ठा करा. और जो जैकल था, ये किसने करा? ऑटर ने. मंकी ने फ्रूट्स लाया, ऑटर ने क्या करा? गंगा नदी में गया और बहुत सारी फिशेस को कलेक्ट करा. और जो जैकल को नहीं पता था कि वो क्या करे, तो वो इधर उधर देखने गया, अब वो सर्च करने लग गया कि मैं मेरा कंट्रीब्यूशन मतलब सब ये कर रहे हैं तो मैं क्या करूं. तो उसने क्या देखा? उसने एक हट देखा. हट मतलब एक घर, एक कच्चा घर.
कहाँ पर? एज, एज मतलब जंगल के कॉर्नर में, एज ऑफ अ जंगल. ओके. He quietly crept inside and stole a pot of curd. The benign small hare tried to find something in the grass. He ran from one patch of the jungle to the other but could not find anything worth giving away in charity. He was so disappointed. He went back to his friends who were waiting with their arms and said, I could find nothing, so I have decided to give my body in charity. His friend said, No, dear friend, you can't do that. But the hare was determined. He said, I have nothing else to give except my body. Wow. समझिए क्या लिखा है. फिर क्या हुआ? वो जो घर था, हट, वो उसके अंदर गया चुपके से और उधर उसने देखा अ पॉट ऑफ कर्ड. कर्ड मतलब क्या होता है? दही. वॉट वी से इन इंग्लिश? कर्ड. उसने वो दही का पॉट देखा और उसने वो उधर से स्टोल कर लिया. स्टोल मतलब चुरा लिया. फिर जो हेयर था, हेयर की टर्न आई कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए. तो हेयर ने इधर उधर देखा पर उसे कुछ भी नहीं मिला. उसने ग्रास में देखा, वो एक पैच, एक एरिया से दूसरे एरिया पर गया जंगल के कुछ ढूंढने के लिए कि वो चैरिटी में क्या दे सकता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला. एंड ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश. वो दुखी हो गया. तो फिर क्या करा? वो अपने वापस से दोस्तों के पास गया. कौन कौन थे उसके दोस्त? मंकी, ऑटर एंड जैकल. तो जो हेयर था, हेयर मीन्स रैबिट, वो अपने दोस्तों के पास गया जो उधर इंतज़ार कर रहे थे अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए. मंकी के पास क्या था? मंकी के पास फ्रेश ऑरेंज, फ्रेश मैंगोज थे, राइट. और ऑटर के पास क्या था? ऑटर के पास फिश थी. जैकल के पास क्या था? जैकल के पास पॉट ऑफ कर्ड. और हेयर के पास कुछ भी नहीं था. तो उसने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी ये सब ढूंढने के लिए, पर मुझे चैरिटी में देने के लिए कुछ भी नहीं मिला. तो मैं क्या दूंगा? ये जो मेरी बॉडी है, आई विल गिव माई बॉडी इन चैरिटी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है. वाओ, व्हाट अ ग्रेट थॉट. आप देख रहे हैं हेयर का डेडिकेशन, मतलब उसने अपनी बॉडी देने के लिए कंट्रीब्यूशन. मतलब आप देखिए जो हेयर का डिटर्मिनेशन था कि मुझे ये करना ही करना है, इवन दो उसे कुछ भी नहीं मिला चैरिटी के लिए, तो वो कौन से लेवल तक चले गया? दैट आई विल गिव माई बॉडी. आप सोचिए, वो अपनी जान, ही विल गिव हिज लाइफ अवे इन चैरिटी. व्हाट अ ग्रेट थॉट. ओके, सो आप सब इधर तक पढ़ के रखिए. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स? ओके, हरे कृष्णा. और आप सब ध्यान रखिए अपना. हरि बोल, हरे कृष्णा, बाय.